So just consider a situation. There are two person A and B. ठीक है? And A has a salary of 25,000 and B has a salary of 20,000. So if someone asks, when I ask me, कि, can you compare? Can you compare their salary? तो अब कंपैरिजन के कई तरीके हो सकते हैं. वन ऑफ द वे टू कंपेयर देम is taking the ratio, because if they are asking just to compare, that means they are not interested in actual figures, है ना, कि what is the salary of A or what is the salary of B. So to compare, I can just reduce it to the smaller positive integer. Like I can say the salary of A is to B is 5:4. Okay, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? So I just reduced the bigger value into smaller term, the smallest integer term, and so that in comparison or to compare their salary, when there is no need of original value, I can just say A and B, a comparison of both salary, matlab, A and B salary. You can write it like A is to B is 5:4. So this is the way, one way of comparing the two salaries, and which is called ratio, of course. So the first thing that I'll be asking you, how did I reach to the figure 5 and 4? कैसे मिला मुझे बताओ? Sir, 25 by 20, 5 5s are 25 and 5 4s are 20, 5:4. Basically what you did, you found the uh, biggest common factor of both of the numbers, which is basically कितना है? 5,000. ठीक है? So once I divided 5, both the numbers by 5,000, I got 5 here and 4 here. So this number, the 5,000, we call it, of course, it's not a SI unit or something which is well defined terms, but at small you can confidently call it ratio maker. Okay? And why I'm calling it ratio maker? Because if you learn through this concept, the questions of ratios will be very easy for you. So, so why I'm calling it ratio maker? Because this is the number with which the initial salaries has been divided to reach 5:4, and this is the same number. If we'll multiply to these numbers, and it will reach to the original values. ठीक है? This will reach to the original value. So now let's consider the another case. If I'm saying A is to B salary is 5:4, and someone can also say the salary of A is to B is 10:8. So is there any difference between these two ratio? No, sir. But it is. क्या difference है बताओ, कोई और बताओ? Ratio maker का different. Huh? ratio maker का difference है, sir. Exactly. So ultimately both the ratio will be reduced, can be reduced down to 5:4 only. But the ratio maker for the initial, the first ratio is 5,000. If we want to reach the original value, and the ratio maker of the second value, or second ratio will be 2,500. So here we are talking about ratio of the fixed numbers, fixed numbers, like we have got this ratio from fixed salaries of A into B, A is to B. So A and B are not a dynamic value. They are not having dynamic salary value. Their salaries are constant. So from the constant figures, we are getting this ratio 5:4 by dividing it by 5,000. And that's why the ratio maker is 5,000. So one more thing that you must have realized here, actually what is 5,000? So we are basically changing the system here. We are making the big values into shorter one, and every value of 1 here, the 1 has a value of 5,000. In this ratio, 1 has a value of
5,000 of original. So if someone asks what is the difference between A and B, so you don't have to go back and find the difference. You can just say the difference between 5 and 1, and since the value of 1 is 5,000, so the difference in their salary is 5,000. So are you getting my point? It's very simple consideration. So I just explained it little more. So that the idea was to give you the clear idea, but you might have got confused also. But सबको clear है बताओ? एक बार पूछ लेता हूँ मैं तुम लोगों से. Yes, sir. Yes, यहाँ पे नया स्टूडेंट कौन है? दिव्या, तुमको समझ में आ रहा है? Hello, sir. So थोड़ा थोड़ा. ठीक है, थोड़ी देर में और समझ में आएगा. ठीक है, एक आइडिया और अभी से रख लो. नेक्स्ट टाइम जो भी क्लास हो रही हो ना, उसके पुराने लेक्चर्स जो है ड्राइव से या फिर यूट्यूब से देख के आओ. ठीक है? So in that way you will learn fast. ठीक है? So now let's take 3 person A, B, and C, and the salary of A. Let's say the salary of A is 80,000. The salary of B is 60,000, and salary of C is 25,000. So if I'll say what will be the ratio of A is to B is to C. So if I'll asking a ratio, basically you want to reduce this into the smallest integer. And to do that, you have to find the highest common factor between these three numbers, which is what will be that be? क्या होगा बताओ? Highest common factor in तीनों में क्या होगा? Again 5,000. So the thing is that you don't have to worry about finding the highest common factor. Basically, you can just find out every common factor and delete or divide it from all the numbers. तो जैसे 0 0 0 तो तुम ऐसे ही काट लोगे, फिर 5 से काट लोगे, तो ऐसे करके 5,000 will be your highest common factor. So ratio would be 16 is to 12 is to 5. ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कोई तो बोलो हाँ ना कुछ भी. Yes, sir. yes, sir. देखो दिक्कत है वो भी बताओ, है ना? हमने रेशियो निकाल लिया. ठीक है, so let's say कि now this figure is not there, है ना? And you also know this figure is not there, and you also know that one or ratio maker or one has a value of 5,000. है ना? Somehow we just missed this figure, but this is what I know. To reach original from this ratio, you just need to multiply it by 5,000. So now by looking this ratio and this value, if I'll ask you, what is the salary difference of A and B? A and B. कितना होगा बताओ? 20,000. Because the salary difference in term of ratio, it is 4 only, and the 4 has a value of 4 into 5,000. So everyone is getting my point? If I'll ask you, what is the average of A and B? So you don't have to go to the original value always. You just calculate the average here only, which is 16 plus 12 by 2, which is 14, and then make it the original value. Let's reach to the original value by multiplying it by 5,000. So if I'll ask you, what is the difference between B and C? Yeah, what is the total of B and C? So what is the total of B and C? 85,000. So it will be 12 plus 5, which is 17, and then multiply it by 5,000 to make it the real value. So basically point is, if original values are there, you can easily get the ratio, and if ratios are there, you can calculate any quantity which can be calculated here, and by doing, after calculating that, you just multiply it by 5,000. So the real problem would be finding the value of this ratio maker. ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हम आगे जो भी क्वेश्चंस होगा वो इसी टर्म में होगा, बट अभी इसको हम अलग रखेंगे, and I will be talking about it later also. So now let's go to the another type of
thing here. So now we were talking about again, we are talking about three numbers, but the ratio is not like here we have found the ratio of A is to B is to C. But let's say the question is like there are two person A and B whose salaries are in ratio, let's say 5:3, and there are other two person. B is of course common there. B and C whose salaries are in ratio 2:7. Okay, and without giving you any total value, I am asking you what will be ratio of, either I can ask you A is to C or A is to B is to C. So देखना, इसको बचपन से तुमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, सबको कैलकुलेट करना आता होगा. You must be knowing it in a very trick maybe, और calculation भी आपको पता होगा, but what I am telling you is very different thing here. So my first point is कि to calculate A is to B is to C, basically you have to merge these two ratios, and or merge these two ratios in such a way. Merging the ratio means, I'm just writing down some terminologies here. You need to remember that. Merging the ratio means making their ratio maker same. ठीक है, ये ध्यान रखना. ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे ही दो नंबर कॉमन जो होते हैं उनको आप सेम कर देते हो. जैसे 3 और 2 जो है, क्योंकि B इज कॉमन टू बोथ ऑफ द रेशियोज, सो B और C को सेम वैल्यू पे ले जाते हो, विच विल बी 6 हियर. तो इसको हम 6 करेंगे तो ये 10:6 हो जाएगा, और इसको हम 6 करेंगे तो ये 6:21 हो जाएगा. and we can easily merge these two ratio like 10:6:21. ऐसा सबने पढ़ा है ना पहले भी. ऐसा कुछ बहुत अजूबा तो हम नहीं करने वाले हैं ना हम यहाँ पे. सॉरी, फिगर्स कहाँ से आए आपके 10, 6, 21 वाले? जैसे अगर हम 3 को 6 करेंगे तो we need to multiply it by 2. हाँ जी. तो हमें 5 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से, हाँ जी. है ना. और अगर हम इसको 2 से 6 पहुंचेंगे तो we need to multiply it by 3. तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6:21. Okay, we are multiplying. We have to merge. हाँ, तो ये बेसिकली मर्ज करने का ही प्रोसेस हुआ, because we wanted to make B's values same at both the places, because B was the common parent. ठीक है. ठीक है. So once B is the same for both of the ratios, we can basically merge it. So A is to B is to C, ये हो जाएगा. So मतलब I'll be doing the same thing now, but I'll have a very different story here. ठीक है, जो तुम्हें सुनना चाहिए. The story is, if I'll ask you, इसका एक रेशियो मेकर होगा A और B का, let's say X, और इसका एक रेशियो मेकर होगा let's say Y. So can X is equal to Y? ऐसा हो सकता है किसी भी कंडीशन में? Can anyone tell me? No, sir. No, sir. क्यों? Why it is so? क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर जो ये 10:6:21 है, तो सर अगर 10 और 6 वो तो आया हो गया, उसकी बात हटाओ. Why we cannot सर have क्योंकि इन X दोनों के रेशियो मेकर अलग अलग है. यस सर. अलग अलग क्यों होने चाहिए? क्योंकि if 3 is the value of B here, तो 3 into X जो B की वैल्यू होगी, और इस रेशियो में 2 represents the B, तो 2 into Y B की वैल्यू होगी. तो इन दिस केस, और ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए, तो X can never be equal to Y. ठीक है. क्योंकि अगर रेशियो मेकर सेम होगा तो उसमें हम 3 और 2 अलग अलग मल्टीप्लाई करके B पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये फिक्स नंबर्स के रेशियोज है. तो इन दिस केस, इफ यू वांट टू मेक देम or merge them, you have to change their ratio makers, and to do that you have to make the B value same for these two ratios. And now we can see
3 and 2 will go to the same value when they are 6. And now when we'll multiply 3 and 2, so there is a common multiple for 3 and 2 is 6. So इसको हम 6 पे ले जाते हैं तो ये हमारा 10:6 होता है, और इसको हम 6 पे ले जाते हैं तो हमारा 6:21 होता है. And this is how we merge the two ratios. और अगर आपसे पूछता है A:C, तो you can just take A and C's value from this place, और 10:21 आप बता सकते हो. और if they are asking A:B:C, तो you will write entire ratio here. ठीक है, ये रेशियो मर्ज करने वाली बात होगी. यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक. सर ये जो हमने या बी की सेम वैल्यू लाने के लिए हमने रेशियो को 3:2 पहले कर दिया, हाँ. तो फिर हमने इंडिविजुअली बी को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई जैसे फ्रैक्शन में करते वैसे ही करा ना हमने. हाँ, हाँ, बस वही कंफर्म करना था. हाँ, मतलब उसको कॉमन वैल्यू लेके, कॉमन मल्टीपल लेके, है ना, उसको वहां पर पहुंचा देना है दोनों तरफ. सर ऐसे सिमिलरली C⁻D और D⁻E होता, तो ऐसे एक एक हाँ. करके करते हैं अपन सबको बराबर. हाँ, एक एक करके सबको कॉमन करते चलते हैं. तो अगर एक और वैल्यू हो जाता है C:D दिया होता है, और फिर तुमसे बोलता है A:B:C:D, तो एक बार ये निकलने के बाद फिर C की वैल्यू को हम सेम करते हैं. एनीवे, मतलब वो क्वेश्चन आएगा, तुम खुद ही समझ जाओगे. सो नाउ I'll ask you very few basic question. अगर मैंने तुमसे बोला कि A, अब मान लो कि A, B, C है ना, ये इनका जो सैलरी का जो वो है रेशियो है 5:7:3. ठीक है, this is the salary ratio for A:B:C. And I have given you a simple stat here that B earns 44,000 more than C. ठीक है, देखो, some of you may be smart enough to do this question very soon, मतलब fast, but you will not speak here. हम उनसे पूछेंगे जो लोग थोड़ा सा अभी स्टक हो रहे हैं. तो बेसिकली A-B-C का रेशियो दिया हुआ है. There is one more information that is given there. B earns 44,000 more than C. And if I'll ask you, what will be the average salary of A and B? ठीक है, तो आइडियली व्हाट यू नो इज कि हम इससे भी एवरेज निकाल सकते हैं रेशियो को, विच इज 5 + 7/2. 6 हमारा एवरेज वैल्यू है इनके सैलरी का फ्रॉम दिस रेशियो सिस्टम. The only thing that you need is to multiply it by ratio maker. If you have, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें सीधा सीधा एवरेज सैलरी मिल जाएगा. The point here is कि the calculation that you can do with the original value, the same calculation you can do with their ratio values also, है ना. बस आपको लास्ट में जाकर to reach to the original value आपको रेशियो मेकर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So now to find ratio maker, and you must have now hint the extra statement that is given there, है ना, that will give you the ratio maker value. So कैसे क्या मिलेगा, रुको हम पूछते हैं जिससे वही बताएगा. दिव्या तुम बताओगी, how will you get ratio maker here? बोलो. सर पता नहीं. अरे कहाँ, अभी तब से तुम यहीं पे हो ना. देखो जो स्टेटमेंट है वो क्या है बताओ. B earns 44,000 more than C. और रेशियो के फिगर्स में क्या दिखता है, बी कितना ज्यादा कमा रहा है सी से. बोलो, फिर से बोलो, इसको देख के बताओ. व्हाट इज द रेशियो फिगर ऑफ बी? Sir, 7. And what is the ratio figure of C? 3. 3. So what is the difference between their salary? 4 times. 4, not 4 times, just 4. हाँ, 4. And so basically the ratios का 4 is real life's what? 44,000. दिख रहा है ना तुम्हें? तो ratios का 1 will be equal to real life 11,000. So basically this is what we call ratio maker. 1 की तो value ratio maker होती है. Okay. Now you get the clear idea. सर ये आपको 4 कहाँ से मिला? यहाँ से मिला. क्या लिखा हुआ है? B earn
समझा समझा समझा। ठीक है ना। आपने B उल्टा किया, वो नॉर्मल 7 - 3 करके 44 मिल जाएगा, वैसे आपने उल्टा किया है। है, उल्टा क्यों करूंगा मैं? मैंने सीधा किया, तुम उल्टा सोच रही हो। हाँ ठीक है, हाँ वही वही। तो 7 - 3 इज 4, है ना, ये रेशियो में है, ये पता चला हमें रेशियो से। और इस स्टेटमेंट से पता चला कि B - C सैलरी का वो 44,000, यानी 4 इज इक्वल टू 44,000, तो 1 इज इक्वल टू 11,000, एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली 1 की वैल्यू रेशियो मेकर है। So now once I get the ratio maker, अब मेरे से कुछ भी पूछे, हमसे पूछता है वो एवरेज निकालो A और B का, तो A और B का हम एवरेज क्या करेंगे, पहले रेशियो वाले फिगर से निकाल लेंगे। 5 + 7/2 which is 12/2 which is 6, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 11,000 से। इफ somebody asked me कि आप B और B कितना ज्यादा कमाता है, या डिफरेंस बिटवीन B और A बताइए, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए बताइए, तो हम देखेंगे बी और ए का डिफरेंस कितना है, 7 - 5 विच इज 2, और इसको ओरिजिनल वैल्यू पे ले जाने के लिए क्या करेंगे हम, 11,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ समबडी आस्क मी कि तीनों का एवरेज बताइए, तो हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। 357 का एवरेज जो हो जाएगा, है ना, सॉरी 357 का एवरेज 5 हो जाएगा, एंड टू रीच ओरिजिनल वैल्यू आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 11,000, है ना। अगर मेरे से पूछता है कि ए और सी का डिफरेंस बताइए, तो आई विल जस्ट फाइंड 5 - 3 which is 2, and I'll multiply it by 11,000 to reach the original value. So did everyone get what I'm doing here? Yes, sir. In Yes, most sir. of the cases, you will have just mostly you will have just two kind of problem here. एक जिसमें रेशियो मर्ज करना होगा, और एक जिसमें रेशियो मेकर कहीं ना कहीं से तुम्हें हिंट दिया रहेगा। तो द हिंट कैन बी गिवन इन एनी वेज, है ना। I could have said here, जैसे B और C का डिफरेंस दिया मैंने, I could have said here that the average of A and C is, let's say, 80,000. So how do you find ratio maker here? So आप देखोगे एवरेज और A और C का कितना निकलेगा रेशियो से, बताओ एनीवन। A और C का एवरेज कितना निकलेगा रेशियो वाले फिगर से? 4 which is 5 + 3/2 which is 4, or I also know the 4 has a value of what, 80,000. So 4 has a value of 80,000, then 1 will have a value of 20,000. This is your ratio maker. अब ये स्टेटमेंट से मैंने रेशियो मेकर निकाला, और फिर अब उसकी मर्जी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे। So I can basically tell or basically calculate anything whatever the question is asking. तो ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि ये दो तरह का मैंने बताया ना कि दो ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ईदर वन वेयर यू हैव टू फाइंड द रेशियो मेकर्स, और वन वेयर यू हैव टू फाइंड मर्ज द टू रेशियोज, और हो सकता है दोनों मिक्स करके भी पूछे। बट लेट मी फाइंड यू अनदर क्वेश्चन हियर। So again, I'm giving you A, B, and C. सेम मतलब वही रेशियो लेते हैं, 5, 7, 3, ठीक है। And if I'm saying you in a term, if B, and let's say this is a population of 3 towns, है ना, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 towns, ऐसे लिखते हैं। या रेशियो ऑफ कुछ भी, मतलब यू कैन जस्ट एज्यूम एनी, मतलब नंबर्स होने चाहिए उस पे, जैसे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिख देते हैं, चलो सबसे आसान, स्टूडेंट्स ऑफ 3 sections, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है A, B, C, and there is one information that is given, if
30 students from B joins C, then both section will have same number of students. Shall have same number of students. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट से और इन रेशियो से स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम बी टू सी, और यहां से हम कितने बी से सी में भेजे कि इक्वल हो जाएगा दोनों? हाउ मच स्टूडेंट, नहीं 30 तो फिगर, यहाँ रेशियो के टर्म में हम पूछ रहे हैं. इन टर्म ऑफ रेशियोज, हाउ मेनी students would go from B to C to make both of them equal? So 4 units of student. Sorry. आज 4 units अगर ले जाओगे तो Sorry sir, 2 units sir, 2 units. हाँ, तो basically what you know now is कि अगर हम -2 इधर करेंगे और इधर +2 करेंगे तो it will be equal. So what you know now is 2 has the same value which is given here, 30. So one will have what value? 15, and this is your रेशियो मेकर. सर समझ नहीं आया तो मुझे. क्या नहीं समझ में आया? सर ये क्यों, मतलब क्या करा सर ये? देखो स्टेटमेंट ऐसा था कि अगर B से 30 स्टूडेंट C को ज्वाइन कर लेते हैं, ओके सर, तो दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, ये बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है ना, जैसे B:C अगर 7:3 है तो B में से कुछ स्टूडेंट C में चले जाए, बराबर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ना? बताओ मोनिस. हाँ सर, यस हाँ, सर. तो अब उसको हमने वही रेशियो में देखा कि रेशियो में ऐसा क्या दिखता है. तो रेशियो में B has a value of 7 and C has a value of 3. So how many values from B should be shifted to C to make both of them equal? सर ये हमने कैसे ये जो +2 -2 वाला कैसे डिटरमिन करा है? अरे तुम घूरती नहीं हो क्या इसको? नंबर्स को घूरा करो ना. मैथमेटिक्स करने का वन ऑफ द मतलब बेस्ट वे इज टू स्टेयर इट. 7 और 3 देख के सोचो कि हम B से कितना ले जाएंगे बराबर हो जाए. तो अगर 1 लेके जाओगी तो कितना होगा? सॉरी, 1 अगर B से 1 उठा के C में ले जाएंगे तो क्या होगा? B के पास कितना बचेगा? 1 लेके गए तो हाँ, 6, और C में कितना हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा उसमें. कहाँ बराबर नहीं हुआ ना? नहीं, तो 2 लेके जाओ. तो फिर हाँ 5 हो जाएगा. तो ऐसे ही ठीक है. किया मैंने बस. So for everything you don't have any method ना, you can do it by trial and error, है ना? यस सर आ गया. Although if you would have asked me कि नहीं कुछ तो मेथड डेवलप करो, तो हम कर सकते थे. We could have make them total, पहले टोटल देख लेते, है ना, and we would have divided into 2 parts, तो ये 5 हो जाता. Basically we need to make everyone 5. तो हम 5 लाने के लिए क्या करते हैं, 7 में से 2 माइनस करेंगे और 3 में 2 ऐड करेंगे, तो 2 इधर से इधर शिफ्ट होगा. बट एनीवे ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड दिस रेशियो फिगर you have to find what is the ratio maker. So the statement is saying 30 students from B to C, मतलब joins from B to C, and shifted from B to C, they both are equal. So by staring these two figures, I realized that the two value, if B donates 2 to C, and they both will be equal to 5. So that 2 has the real time value of 30, है ना? So one will have real time value of 15. So this is your ratio maker. ठीक है, अब क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर. बताओ. हाँ सर, आ गया समझ. और ये अलग अलग तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा ना क्वेश्चन में कि हाँ, रेशियो में. क्वेश्चन के स्टेटमेंट से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि बेसिकली विच स्टेटमेंट इज गिविंग यू द रेशियो मेकर वैल्यू इन व्हाट वे, क्योंकि दे मे हैव वेरी डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट इट. ठीक है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है. जब तुम थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें सब दिखने लगेगा. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग, जैसे हम इस पे और वैरायटी नहीं ऐड करने वाले हैं प्रॉब्लम्स की, सो बेटर यू विल गो टू द सीट
and do the questions first, and then we will add some variety. ठीक है, but basic तुम्हें यही मिलेगा. To entire ratio chapter you will have just two kind of problems. One where you will basically have to find ratio maker, what is the ratio maker, and then find what is the value जो तुम्हें calculate करना है. और second जो होगा वो होगा तुम्हारा जिसपे ratio merge करना पड़ेगा. ठीक है, तो let me take one other example here. जैसे टोटल वाला ही वैल्यू देते हैं कई बार, जैसे ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये भी मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल है, बट अगर तुम अपने तरीके से देखो तो लिखता है कि देयर आर पेंसिल्स पेन एंड एक्सरसाइज बुक्स. ये जो है आपका 10:2:3 के रेशियो में है इन अ स्टेशनरी स्टोर. एंड टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 120 है. सो हाउ डू यू फाइंड रेशियो मेकर, बताओ. अरे तुम लोग एकदम इंतजास्ट नहीं रखते हो क्या, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? सर फिर हम यहाँ पेन मैं में बता दूं क्या? प्लस नहीं वन, मर्जी तुमने बताओ. यार क्या कह रही हो तुम? सर फिर हम यहाँ पे पेन में +1 और पेन ये एक्सरसाइज बुक में -1 करके उसको पहले कर देंगे उसको. है? ये क्यों करेंगे? दिया क्या है तुम्हें, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सर 20 होगा. So 5. अच्छा, ऐसे कुछ भी निकाल रहे हो क्या तुम लोग? 1 part is 8. पहले 1 मिनट रुको, एक एक करके पकड़ने दो. चेतना तुमने क्या बताया, बताओ मुझे. सर 15 बोला है मैंने, नहीं 5 बोला है मैंने. 5 क्यों 5. बोला? सर मैंने तीनों का एवरेज निकाला. एवरेज दिया हुआ है क्या यहाँ पे? सर 3 क्वांटिटी है तो 10 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने. डिवाइड बाय 3 क्यों करोगे? दैट्स द एवरेज वैल्यू. टोटल तो 10 + 2 + 3 ही रहेगा ना. सर 24. ये 10 + 2 + 3 जो है 24 होता है. नहीं सर मैं टोटल करके वो करी थी. टोटल जो है ये 15 हुआ, टोटल की वैल्यू दी हुई है 120. सर 8 आएगा क्या? हाँ, तुम लोग ये इतना सिंपल चीज में भी इतना स्टक होते हो क्या? पहले ही बताओ तो. चेतना पहले बताओ, एवरेज वाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज एक्चुअली. यस सर, इफ इट इज गिवन तो सामने ही से ही हो जाता है. तो ये तो टोटल दिया हुआ है, तुम एवरेज क्यों निकाल रहे हो? राइट बात समझ में आई? यस सर. तो ये दिया हुआ है कि टोटल आइटम 120 है, तो हमने इसका टोटल किया 15 विच इज 120, तो 1 इज वैल्यू ऑफ 8. अब इसके बाद क्वेश्चन कैन आस्क एनीथिंग. क्वेश्चन कैन आस्क व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन, क्या बताओगे? 2 × 8. व्हाट इज द नंबर ऑफ पेंसिल्स, क्या बताओगे? 10 × 8. सो देखते में आस्क एनीथिंग, है ना. बस एक रेशियो के साथ वो एक ऐसा स्टेटमेंट देंगे बाय विच यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेशियो मेकर. ठीक है? हाँ सर. Yes, sir. सर यस सर. वो सिंपल नहीं है. रुको एक और पूछता हूं मैं. इसी तरह से कुछ भी करके ना टिपिकल करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, है ना. ये तो एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जस्ट लिसन. दिखता है ए बी एंड सी, द सैलरी जो ए बी सी का जो रेशियो है 1:2:3 है. एंड द सेकंड स्टेटमेंट दे हैव गिवन, है ना, बी एंड सी टुगेदर जो सैलरी है बी एंड सी टुगेदर दैट इज 6,000. और जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है बस व्हाट % is the salary of C more than that of A? % salary of C is more than A. अब पता है कई बार क्या होता है, मतलब I know the psychology of many student, वो इतने सारे डेटा, इतने सारे रेशियोज और ऊपर से परसेंटेज का क्वेश्चन देख के डर जाते हैं. जस्ट कीप योरसेल्फ वेरी क्लियर, गो टू द कोर ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ कोर ऑफ प्रॉब्लम क्या है? पहले इनकी सैलरी निकालनी है, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे. एंड टू कैलकुलेट सैलरी you need to find what is the ratio maker, and to calculate ratio maker you will be taking the second statement which is there. तो अब मुझे बताओ, और मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा,
अब मुझे कौन बताएगा, रुको, दृष्टि तुम बताओ कि ये स्टेटमेंट से हम रेशियो मेकर कैसे निकालेंगे। सर मेरा बीच में नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। ये स्टेटमेंट है कि बीएनसी का डिफरेंस ये टोटल नहीं, डिफरेंस नहीं, बीएनसी का अच्छा टोटल। बीएनसी का टोटल 6000 है। तो सर 3+2 इज 5 मतलब 5 इज 6000 कर देंगे। हाँ बस, अब बिल्कुल समझदार हो गए तुम। सो यू नो फ्रॉम द रेशियो पीएनसी का टोटल 5 लग रहा है, बट द इन रियल टर्म इट इज 6000। सो बेसिकली यू नो इट इज द रिड्यूस्ड रेशियो, मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू ओनली। रिड्यूस क्या क्या लेवल है, क्या स्केल है, उसके लिए हमने रेशियो मेकर निकाल दिया। सो 1 विल द वैल्यू ऑफ 1200। अब हम तीनों की सैलरी निकाल सकते हैं। पूछा है कि सी जो है ए से कितना ज्यादा है। ऑल्दो इस पूरे निकालने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से भी बता सकते थे, बिकॉज यू जस्ट नीड रेशियो टू कैलकुलेट इट। सी जैसे ये तो परसेंटेज लिखा है ना, तो वी कुड हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम रेशियो आल्सो कि सी जो है ए से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो 1 से 2 ज्यादा होना मतलब 200% ज्यादा होना। बट अगेन द थिंग इज, अगर कुछ और पूछा होता तो हम सीधे सीधे रेशियो मेकर निकाल लेते। ठीक है, तो परसेंटेज तो तुम्हें पता ही है कैसे निकाला जाता है। सर ये जो आपने अभी बताया कि हम ए और सी में ऐड करते हैं, मीनिंग हम 6000 में 1200 ऐड कर देते तो हमारे को टोटल का मिल जाता। इज दैट व्हाट यू मतलब मीन? जो 6000 है बी और सी मिलाकर है, हमें हमें पूरे का देखना है। हाँ। तो 6000 में एक की वैल्यू एक ही डाल के 1200 जो हमने निकाली है, हाँ, हम तो ये तीनों तीनों का टोटल निकल जाएगा। हाँ, हाँ। मतलब कुछ भी करके निकाल लो, या फिर तुम ऐसे देख लो कि इनका टोटल कितना बन रहा है। 1 + 2 + 3 विच इज 6, और 6 में भी 1200 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी निकल आएगा टोटल। आई बात समझ में? यस सर, तो आप पूछ रहे हो ना Yes, कि sir. ये सी ए से कितना % ज्यादा है, तो मतलब हाँ 200% ज्यादा। हाँ, ओके मतलब मैं यही बाद में बता रहा था कि इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, वो रेशियो से ही दिख जाता है, क्योंकि रेशियो में भी तो वही चीज है ना जो ओरिजिनल सैलरी में है, वो केवल रिड्यूस ही तो किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन तो पूछता ये हूँ। 200% कैसे है वो नहीं समझ रहा। अच्छा, 1 से 3 कितना ज्यादा है? 2। 2 ज्यादा है ना, तो ज्यादा का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर? 1 के ऊपर। 2/1 × 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा, ठीक है सर। है ना? तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। सो बेसिकली आई वाज जस्ट लुकिंग कि कोई ऐसा मिले कि हाँ, चलो इसमें मिक्स है, मर्ज करने का भी है और रेशियो मेकर का भी है। ये बोलता है कि ए एंड बी का रेशियो, एज का रेशियो, A/B एज का रेशियो जो है 3:5 है। B/C जो है एज का रेशियो जो है वो अगेन 3:5 है। और इनका टोटल ABC का टोटल जो है दैट इज 1, ये तुम्हारे सीट्स का ही क्वेश्चन है, 147। तो आपको निकालना है बेसिकली व्हाट, हाउ ओल्ड इज बी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल निकालना है, तो पहले हम इसको मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करोगे बताओ? हाउ विल यू मर्ज दिस टू रेशियोज? यू विल मेक द वैल्यू ऑफ बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। और 5 और 3 कब सेम हो जाएंगे? क्या? 15 पे। तो टू रीच 15, 5 से 15 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। And to reach 15 from 3, we need to multiply it by 5. So it will be 25. 5:25. और ये 15 हो जाएगा, सॉरी। अब मर्ज करके हम क्या लिखेंगे? A/B/C कितना हो जाएगा बताओ? 9:15 what? 25 25. The total of A और B और C कितना हो जाएगा यहाँ पे रेशियो के थ्रू? सर 49 49। और यही वैल्यू कितना है स्टेटमेंट? 147 सर, ये 3 हो जाएगा। हाँ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ओके,
तो अब मुझसे पूछ रहा है कि बी का एज निकालो, तो हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, इसको या इसको? सर 15 को करेंगे। यस, क्योंकि अब ये जो ऊपर वाले रेशियोज हैं वो इनवैलिड हो गए, क्योंकि हमने उसको मर्ज करके नया रेशियो बना लिया, और आई एम कैलकुलेटिंग द रेशियो मेकर फॉर दिस रेशियो, है ना, ऊपर वाले को नहीं, इसका निकाला था हमने रेशियो। तो अब हमें बी का एज बताना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आई विल मल्टीप्लाई 15 बाई 3, 45, दिस इज माय वैल्यू फॉर बी। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? सर यहाँ पे जो 147 था, हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे? बी का एज पूछा था। बी का एज, हाँ। ओके ठीक है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है कि जब आप, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मतलब मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, इसलिए मैं इसको बहुत क्रिस्प रख रहा हूँ, सो दैट यू कैन बेसिकली कैलकुलेट और मेक ये वेरी इजीली। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कल प्रॉब्लम हो रही थी तुम लोग को कि 100 को 1:4 में मान लो कि डिवाइड करना है, सो नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। 1:4 के कारण टोटल कितना है 1:4 का, बताओ? 5 है ना। 1:4 मतलब टोटल कितना हुआ 5, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। सो नाउ इट्स वेरी इजी टू बेसिकली डिवाइड एनी नंबर इनटू एनी रेशियो। अब आप दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिवीजन हो जाएगा। तो कल कई बार प्रॉब्लम नहीं आ रही थी लोगों को कि ये डिवीजन करने में दिक्कत हो रहा था नंबर्स को, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 मिनट, ये आज के लिए कंप्लीट है, बट रुकोगे तुम लोग 1 मिनट।